Hello and welcome to Ignited Minds. Today it's 24th of July 2024 and in this Hindu newspaper analysis we will be discussing all the news articles which are highlighted on your screens. सबसे बड़ी खबर आ रही है नेपाल से जहां पे एक प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें से 18 लोग मरे हैं और ये प्लेन कहाँ क्रैश हुआ है ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे प्लस हम ये भी देखेंगे कि यूपीएससी अभी जो चलते केसेस आ रहे हैं अबाउट एनटीए एंड पूजा खेड़कर यूपीएससी वांट्स टू रिवैम्प इट्स टेक्नोलॉजीज एंड नई टेक्नोलॉजीज अडॉप्ट करना चाहता है. वी विल ऑल्सो सी द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ऑफ कृष्णा रिवर, इस पे कौन कौन सा डैम बना हुआ है, प्लस वी विल ऑल्सो सी संगमेश्वर टेम्पल. इसके साथ साथ देर आर 3 discussions about the budget. 2 are about the criticism and the critical analysis of the budget, and 1 is about the urban transformation and the steps which are taken for the urbanization of government which pertains to GS1 of your syllabus. Rest, there are 2 articles from GS2 paper. One is about India UK relations and one article is about president and governor pertaining to article 361. So let's begin the discussion with our UPSC prelims PYQ. So this question was from UPSC, is from UPSC 2024 एंड यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसका रिट पिटिशन और द हेबियस कॉर्पस, द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉर फंडामेंटल राइट्स, है ना, जो आर्टिकल 32 में मेंशन्ड है, ये हम सब लोग ये पढ़ते हैं एंड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था बट ऑल्दो इट्स कंफ्यूजिंग, ठीक है, बिकॉज ऑफ द 3 प्रोहिबिटिंग वर्ड्स विच आर यूज्ड इन दिस. चारों स्टेटमेंट्स में प्रोहिबिशन यूज किया गया है जस्ट टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स. बट इफ यू सी द आंसर इज क्वाइट सिमिलर, क्वाइट visible. It says first statement, the government officer prohibiting him, a government officer prohibiting him from taking a particular action. So it's about executive. Next is the Parliament Legislative Assembly to pass a law on prohibition. This is about legislature. Third is about judiciary. And fourth is the government prohibiting it from following an unconstitutional policy. This is also about executive. So 2 statements about executive are there. One is about legislature and one is about judiciary. The writ of prohibition, अगर आपको पता हो तो ये इशू की जाती है ओनली इन केस ऑफ जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज के अगेंस्ट में. देयरफॉर द आंसर बिकम्स सी. And this question was very much discussed in all the classes of Ignited Minds last year. और अगर आप ये देखो तो लक्ष्मीकांत के बेसिक एक्सप्लेनेशन में भी ये क्वेश्चन का आंसर मेंशन्ड है. So we just need to revise more and more and understand the nature of UPSC PYQs which we rightly are doing in this session. And if you see, the writ of petition is issued by court to prohibit lower courts, tribunals and quasi judicial authorities. ठीक है, तो 3 लोगों के अगेंस्ट में ये रिट इशू होती है, कोर्ट्स के अगेंस्ट में, ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट में, या लोअर कोर्ट्स जो होते हैं, लोअर जुडिशरी जो होती है उसके अगेंस्ट में, या क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटीज के अगेंस्ट में. ठीक है, प्लस once they start to do anything or cross their jurisdiction beyond their authority, that is crossing their jurisdiction, once they do such activities, the higher judiciary will prohibit them. But similarly there is one more writ which talks about mandamus, जो हमारा statement 2 था, that it directs activity and inactivity of the government or legislature about anything. ठीक है, तो mandamus is for command. मैंडमस का मतलब ही कमांड होता है, टू कमांड. ठीक है, वाइल एज हेबियस कॉर्पस तो हम सबको याद है बट प्रोहिबिशन थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन आया था. सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन. नेपाल में द लोन सर्वाइवर आउट ऑफ द 19 पैसेंजर्स ऑन दिस प्लेन is Captain Manish Ratnashakya, who was the pilot of this शौर्य एयरलाइंस. और एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 19 में से अराउंड एक ही इंसान बचा है और 18 लोगों की मौत हुई है. डन.
और ये कहाँ पे हुआ है? ये एक्चुअल में काठमांडू का एक त्रिभुवन एयरपोर्ट है जहाँ से ये निकला था प्लेन। एंड इफ यू सी द एक्सीडेंट हैपेंड वेरी मच क्लोजर टू द हैबिटेशन ऑफ पीपल। एंड इस न्यूज़ में यही सब है कि कहाँ पे हुआ था और क्यों हुआ था ये एक्सीडेंट। और द वन पर्सन इंजर्ड वाज रेस्क्यूड एंड टेकन टू द हॉस्पिटल एंड 18 persons were found dead। ठीक है, so understand the gravity of this accident of airlines. Next important article which we are going to discuss in detail is about UPSC. UPSC is hereby talking about some key new systems, features of the new system. UPSC क्या चाहता है कि वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाए, बायोमेट्रिक डिटेल्स को मैच कराए जब कैंडिडेट आए एग्जाम देने। दूसरा, रियल टाइम अटेंडेंस हो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के साथ। ठीक है, कि जो स्टूडेंट वहां आ जाए एग्जाम देने, उस स्टूडेंट के जीपीएस कोऑर्डिनेट्स भी लोकेट हो जाए कि वो कहाँ पे एग्जाम दे रहा है और कैसे एग्जाम दे रहा है। बिकॉज वहां पे होगा क्या, एक मशीन होगी जिसमें बायोमेट्रिक्स लिए जाएंगे, ठीक है, थंब इंप्रेशन लिया जाएगा और वो मशीन कनेक्टेड होगी जीपीएस के साथ, और वही मशीन लोकेशन बताएगी कि इस स्टूडेंट ने, इस कैंडिडेट ने कहाँ पे अपने बायोमेट्रिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, किस सेंटर पे दिए हैं अपने बायोमेट्रिक्स। प्लस वहां पे एक क्यूआर कोड भी होगा टू फेच एडमिट कार्ड्स एंड कैंडिडेट डिटेल्स। सीसीटीवी वीडियो सर्वेलेंस होगी जिसका लाइव टेलीकास्ट चलेगा यूपीएससी के कंट्रोल रूम में। तो ये सब चीजें नए कुछ मेजर्स है जो यूपीएससी लेना चाहता है। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, टेंडर इशू किए हैं फॉर पब्लिक अथॉरिटीज, फॉर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स टू proceed for these technologies, जो ये technologies provide करेंगे। So before we move ahead, I want you to understand the basics of public service commissions. As per article 312 of the Constitution, the Parliament is entitled to create one or more all India services। ठीक है, और ऑल इंडिया सर्विसेज बनाने के लिए जो रेजोल्यूशन पास होता है या रेजोल्यूशन आएगा, वो कौन लेके आएगा, वो राज्यसभा लेके आएगा। ठीक है, एंड इसमें क्या होगा, देयर विल बी रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल दीज सर्विसेज विल बी मेड बाय यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल दीज सर्विसेज विल बी मेड बाय यूपीएससी, एंड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज इन द स्टेट the recruitment will be by state public service commission। so UPSC and state public service commissions ये काम करेंगे। now UPSC जो है, UPSC is a central authority, a central recruiting authority। it's a constitutional body जिसका mandate दिया गया है पार्ट 14 में, plus the articles which pertain to this are आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक। ठीक है, these articles are related to both UPSC and state PSC। ठीक है, now what are the other constitutional provisions, like what are the provisions which are mentioned in these articles? so article 315 mentions that there should be constitution of, कि कैसे बनाया जाए क्या, पब्लिक सर्विस कमीशन for union and states। so it says there should be a commission for union and states of India। in article 316 it said that it talks about the appointment and term of the office of members का term and office and appointment for both UPSC plus state PSC। ठीक है, आर्टिकल 317 टॉक्स अबाउट द रिमूवल, सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ बोथ द मेंबर्स ऑफ यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी। आर्टिकल 318 talks about the powers to make regulations for the conditions of the service of members and the staff of the commission। ठीक है, आर्टिकल 300 it's about regulation। Article 319 talks about the prohibition of holding of the office of members of the commission upon seizing by such members। Article 320 talks about the states to function and the
states the function of these public service commissions. ठीक है, आर्टिकल 321 talks about the powers to extend these functions to public service commissions. Article 322 talks about the expenses which are charged on consolidated fund of India. It's not the voted expense, it's the charged expense which is mentioned in article 322, and article 323 talks about the reports. जो रिपोर्ट्स यूपीएससी और स्टेट पीएससी सबमिट करता है प्रेसिडेंट और गवर्नर को, वो रिपोर्ट्स जाके फिर पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली में प्रेजेंट होती है। ठीक है, यहां तक तो इसके आर्टिकल्स हो गए। ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है और ये आर्टिकल्स याद रहने चाहिए। ठीक है, इफ नॉट द नंबर बट यू शुड रिमेंबर दैट कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या मेंशन्ड है इनके लिए। ठीक है, रेगुलेशन, रिमूवल, सस्पेंशन, प्रोहिबिशन, फंक्शंस, पावर्स एंड एक्सपेंसेस, एवरीथिंग इज mentioned in the constitution. ठीक है, so if we talk about the constitution of these commissions, तो यूपीएससी में एक चेयरमैन होता है प्लस मेंबर्स होते हैं which are appointed, who are appointed by president of India. ठीक है, the term of office is 6 years or 65 years of age, whichever is earlier is taken as their term. Next, are they eligible for reappointment? Any person who holds this office of public service commission is ineligible for reappointment. So reappointment is not allowed. ठीक है, किसी भी person के लिए who is holding office in this public service commission, although a person, if he has age and if he has term, then he can be promoted from member to chairman. A chairman of state public service commission can be appointed as a member in UPSC or the chairman of the UPSC. Resignation, if they want to resign, they have to submit their resignation to the president of India. ठीक है, and if it's about the removal of these members, the chairman or any other member of UPSC shall only be removed from his office by the order of the president. ठीक है, further the conditions of their removal are, first, कैसे remove होता है ये? There are some conditions which are mentioned in the constitution. It says first, he should be adjudged as insolvent. Second, if he is engaged in a paid employment outside the office. Third, if in the opinion of the president he is unfit for the office or has infirmity of body और माइंड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है ये और बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है जो आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, डन। It is the president of India who shall regulate the conditions of service of this office. Next important editorial. This is not basically editorial. This was an image captured in the Hindu. और ये इमेज मैं क्यों लेता हूँ, यूजुअली हफ्ते में ऐसा एक इमेज आता है या दो हफ्ते में दो भी कभी आ जाते हैं और हम उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं इस सेशन में, ताकि हमें ये समझ आ जाए कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी है। सबसे पहली चीज है कृष्णा रिवर यहाँ पे मेंशन्ड है और दूसरा संगमेश्वर टेम्पल यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, और यहाँ से मैंने बहुत टाइम पे देखा है कि क्वेश्चंस बनते हैं। संगमेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? नंदयाल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है ये संगमेश्वर टेम्पल। ठीक है, तो कृष्णा रिवर के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। कृष्णा रिवर जो कि वेस्टर्न घाट से इमर्ज होता है। ठीक है, ये एक इंटरस्टेट रिवर है। ठीक है, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुला
among the peninsular rivers. It's the second largest river. It originates from Mahabaleshwar. From Mahabaleshwar in Maharashtra in the Western Ghats. It runs around 1400 kilometers across the peninsula from west to east direction. ठीक है, and then it crosses Maharashtra, it crosses Maharashtra, it crosses Karnataka and it crosses आंध्र प्रदेश. ठीक है, इसकी जो मेजर ट्रिब्यूटरीज है that is घटप्रभा. If you see, if it's not mentioned here, it's okay. The major tributaries are घटप्रभा, मलप्रभा, भीमा एंड तुंगभद्रा. ठीक है, ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है ऑफ द कृष्णा रिवर. ठीक है, नेक्स्ट इसका ओरिजिन हमने देखा. ओरिजिन जो कि महाबलेश्वर है, यहां पे एक गांव है जिसका नाम है जोर विलेज, जहां से ये निकलता है, जो महाराष्ट्र में है. जोर विलेज इज लोकेटेड इन द फार नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ वाई तालुका. ठीक है, यहां तक क्लियर है, नहीं याद रखना है, बट जोर विलेज याद रखना चाहिए. रिवर कहां जाके गिरता है? बे ऑफ बंगाल में गिरता है. एंड यहां पे जहां पे ये बे ऑफ बंगाल में गिरता है, यहां पे एक जगह है जिसका नाम है हमसाला देवी. हमसाला देवी, अ प्लेस इन आंध्र प्रदेश, जहां पे ये गिरता है. कहां पे? बे ऑफ बंगाल में. ठीक है, और यहां पे ये एक डेल्टा बनाता है. द डेल्टा इज मोस्ट प्रोडक्टिव एरिया. और यहां पे दिस रीजन इन द प्री हिस्टोरिक टाइम्स वॉज अंडर इक्ष्वाकु एंड सातवाहना किंग्स. ठीक है, हु रूल्ड इन दिस सिटी. डन, यहां तक क्लियर हो गया. दिस इज अबाउट कृष्णा रिवर. कृष्णा रिवर पे ही एक डैम है यहाँ पे, श्रीशैलम नागार्जुन सागर डैम. ठीक है, और यहीं पे एक ट्रिब्यूटरी आके मिलती है इसको, जो बनाती है संगम. उस ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है? जो ट्रिब्यूटरी है वो यहाँ पे नागार्जुना श्रीशैलम डैम के पास आके मिलती है, जिस ट्रिब्यूटरी का नाम है भवानासी रिवर. ठीक है, एंड ये जो संगम बनाती है, उसी संगम के पास है लोकेटेड संगमेश्वर टेम्पल. ठीक है, तो यहां पे जो ये संगम है, इसकी वजह से इसका नाम है संगमेश्वर टेम्पल. प्लस एक और चीज आपने देखी होगी कि ये जो इमेज हमने अभी देखी, वो इमेज सबमर्ज थी, एंड दिस एरिया यूजुअली रिमेन सबमर्ज, और वो इमेज इसी टेम्पल की इमेज थी. ठीक है, दिस इज ए हिंदू टेम्पल एंड दिस टेम्पल इज ऑन द फोर शोर ऑफ दिस श्रीशैलम रिजर्वायर. अंडरस्टूड? यहां तक क्लियर है? बिकॉज ये रिजर्वायर सबमर्ज रहता है, ये एरिया सबमर्ज रहता है, तो इसीलिए यहां पे ये टेम्पल सबमर्ज था. टेम्पल संगमेश्वरम इज बिलीव्ड कि ये बनाया गया था, और यहां पे जो आइडल है उसको प्लेस किया गया था एक राजा ने, जिसका नाम था धर्मराजा. ठीक है, एंड धर्मराजा वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ पांडवास. ठीक है, एंड आफ्टर द विजिट टू श्रीशैलम मल्लिकार्जुन टेम्पल, उसने यहां पे ये टेम्पल बनवाया, और उसने यहां पे ये टेम्पल में जो है एक वुडन लिंगम एस्टैब्लिश किया. डन यहां तक? द टेम्पल इज कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ रिलीजियस सैंक्टिटी बिकॉज यहां पे बोला जाता है दैट देयर इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ 7 रिवर्स. ठीक है, अभी यहां पे कौन से 7 रिवर्स है जो यहां पे आके मिलते हैं? इट इज भवानासी, कृष्णा, वेनी, टुंगा, भद्रा, भीमारथी एंड मलापहारिनी. तो दीज आर द 7 रिवर्स जो यहाँ पे बोले जाते हैं कि मर्ज होते हैं सब एक दूसरे के साथ. कॉन्फ्लुएंस है इन 7 रिवर्स का यहाँ पे, इसीलिए इस जगह को इंपॉर्टेंस मिली है, इसीलिए इस जगह का नाम है संगमेश्वर टेम्पल. ठीक है, यहां तक क्लियर है? और दिस टेम्पल वॉज फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम अंडर
इक्ष्वाकुस, सातवाहनास एंड चालुक्यास ऑल्सो। तो चालुक्यन आर्किटेक्चर भी हमें यहाँ पे मिलता है। Let's move to the next editorial. This is the main editorial in today's newspaper and it talks about the budget 2024. This editorial talks about two things कि budget जो है it's long on intent, ठीक है, it shows that what is the intent or what is the intention of the budget कि हमें आगे क्या क्या करना है, but ये नहीं बता रहा है in detail में कि कैसे करेंगे, ठीक है। So let's see what is it. सबसे पहले 9 priorities are there in budget for Viksit Bharat at 2047, Developed India in 2047. Budget acknowledges the unemployment problem and it also proposes some of the initiatives to generate employment in India. ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। बट नाउ टॉक्स अप दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द फिस्कल स्ट्रैटेजी ऑफ द बजट कि बजट की फिस्कल स्ट्रैटेजी क्या है। इट सेज कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो कम हो गया है, 4.9% आ गया है इन द इंटरिम बजट कि 4.9% हम अचीव कर लेंगे। देयर इज अ कमिटमेंट टू रिड्यूस इट टू 4.5% बाय 2026 प्लस द न्यू मीडियम टर्म फिस्कल कंसोलिडेशन पाथ इज लिंक्ड टू रिड्यूस्ड डेट टू जीडीपी रेशियो। ठीक है, कि हमारा डेट दैट इज द लोन एंड द पब्लिक बोरोइंग्स व्हिच वी आर डूइंग इज टू GDP of the country is decreasing. So if we are less on debt and we are creating more of our own capital, we are creating more of our investment from the our own domestic market. If the debt to GDP ratio is less, it means we have to pay lesser interest payments, which इवेंचुअली विल मीन दैट क्योंकि हमारी जीडीपी का, हमारी पूरी इकोनॉमी का, पूरी जो इनकम है, रुपी जो सबसे ज्यादा जाता है, इट गोज टू इंटरेस्ट पेमेंट्स. It means that our fiscal deficit will reduce. If you talk about the expenditure part of the budget, the overall budget size has increased. However, capital expenditure remains largely unchanged, जो हमने कल भी देखा 11.1 trillion rupees. Some sectors show a decline in the budget estimates. Many items have showed lower revised estimates, like Manrega also. We have seen a lower increase and we have also seen a decline in the allocation of the budget. Okay. Plus, the budget also talks about employment and consumption. Budget में employment and consumption पे क्या लिखा गया है? Employment पे बोला गया था that we will talk about the 500 जो टॉप कंपनीज होंगी उनमें हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं उनको इंटर्नशिप की सुविधाएं मिल जाएं. प्लस वी विल आल्सो गिव इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉयमेंट दोज हु आर फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर्स, जो फॉर्मल सेक्टर पहली बार एंटर करेंगे उनके लिए कुछ इंसेंटिव्स है, लाइक उनको 15,000 रुपये का एक ग्रांट मिलेगा जो 5-5 हज़ार रुपये की इंस्टॉलमेंट में आएगा. प्लस एम्प्लॉयर के लिए ये होगा कि 3,000 रुपये तक का जो EPFO कॉन्ट्रीब्यूशन है वो गवर्नमेंट देगी. ठीक है, विच वॉज अर्लियर, जो बहुत पहले खत्म कर दिया गया था, बट अब 3,000 रुपये तक का जो EPFO कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का होगा वो गवर्नमेंट देगी. और ये जो 3,000 रुपये तक का एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ये गवर्नमेंट 2 साल तक देगी उन लोगों के लिए जो ये फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर्स होंगे. द आर्टिकल criticizes these measures as the measures on the private investment and revival of MSME sectors through credit schemes. कि क्रेडिट गारंटी स्कीम हमने कल भी पढ़ा था MSMEs के लिए, बट आर्टिकल क्रिटिसाइजेस कि ये जो मेजर्स है दे आर इनसफिशिएंट टू एड्रेस द कोर एम्प्लॉयमेंट इश्यूज. बिकॉज आप बस बता रहे हो जो एम्प्लॉई ऑलरेडी काम कर रहा है, जो पैसा कमा रहा है, चाहे वो फॉर्मल सेक्टर में है या इनफॉर्मल सेक्टर में है, आप बस इनफॉर्मल से उठा के फॉर्मल में लेके जा रहे हो, बट यू आर नॉट टैकलिंग द अनएम्प्लॉयमेंट एक्चुअली. ठीक है, दिस मे करेक्ट द डेटा फिगर्स ऑफ इंडिया बट द रियल ग्राउंड लेवल इश्यूज एंड द रूरल डिस्ट्रेस, जिसपे ऑलरेडी आर्टिकल्स हमने डिस्कस किए हैं बजट से पहले, द रूरल डिस्ट्रेस दैट इज नॉट बीइंग एड्रेस्ड. ठीक है, वन थिंग. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द एमिशंस एंड critiques. The budget highlights that there is a lack of significant initiatives for industrial sector, education and health. It points out the absence of the mention of key areas like railways,
प्रोडक्शन लिंक्ड की इंसेंटिव स्कीम एंड गति शक्ति, है ना, जो हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को चेंज करने वाली थी, इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने वाली थी, पूरी गति शक्ति स्कीम, है ना, इनका मेंशन ही नहीं है बजट में. प्लस द ऑथर ऑल्सो सजेस्ट दैट वी नीड मोर बोल्डर स्टेप्स फॉर द विजन ऑफ विकसित भारत बाय 2047. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया. ये वाला एडिटोरियल जो है, दिस टॉक्स अबाउट अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रैटेजीज, how to transform the urban area and why to transform the urban area. It says around 50 crore people of India, they are currently living in cities, which is around 36% of India's population. जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 36% ऑलरेडी अर्बन एरियाज में रह रहा है, विच इज ग्रोइंग एनुअली एट 2.5%. तो कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है. इसका मतलब क्या है? अर्बनाइजेशन और अर्बन स्प्रॉल इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब क्या है? दैट वी नीड प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट. और प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट के लिए अब बजट में क्या क्या बोला गया है? सबसे पहली चीज, जो अर्बन हाउसिंग को लेके इशू है, ठीक है, जिसकी वजह से अदरवाइज स्लम्स क्रिएट हो जाते हैं. ऑलरेडी पीएम आवास योजना अर्बन के अंदर 85 लाख यूनिट्स जो घर है वो बनाए गए हैं अभी तक. प्लस बजट जो इस बार का है ये बोल रहा है कि 1 करोड़ मोर यूनिट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड. ठीक है, जिसके लिए 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन रखा गया है यहाँ पे. प्लस ये भी बोला गया है कि जो ये रेंटल सोसाइटीज होती है, रेंटल कमर्शियल बिल्डिंग्स होती है ना, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होते हैं, दे विल बी बिल्ट इन पीपीपी मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड. इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बोला गया है दैट अमृत मिशन has provided 8,000 crores for core infrastructure of the cities. There is जो हमने अभी भी देखा केपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर. कैपिटल एक्सपेंडिचर तो इनने रखा है 11.11 लाख करोड़ रुपीस, है ना, और 11.1 ट्रिलियन रुपीस. द पॉइंट इज यहाँ पे कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये जो केपेक्स है, दिस इज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट एंटायरली फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. 1.50 lakh crores interest free loan for states for the infrastructural development has already been announced. अभी ये जो 3-4 स्टेप यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए हैं ये आपको याद रखने होंगे. ठीक है, यहाँ तक, क्योंकि आप इन्हीं पॉइंट्स का यूज करोगे अपने आंसर्स में. डन. इसके बाद द स्मार्ट सिटीज एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स. द स्मार्ट सिटीज मिशन बजट was reduced to 2400 crore rupees, जो कि एक इशू है यहाँ पे. इसका बजट कम कर दिया गया है स्मार्ट सिटीज का, although we already have developed a lot of smart cities. Next is the new national urban digital mission, है ना. This is for the digitization of property and tax records. ये जो मिशन है ये हम इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं आगे. सिटी प्लानिंग को लेके there is focus on planned development of cities, 500 crore rupees for incubation of new cities and transit oriented development in the peri urban area development. ठीक है. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को लेके इलेक्ट्रिक बस सिस्टम ये भी लेके आ जाएंगे सिटीज में. सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके देयर इज अ पर्पस ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग, जो बोला गया है. वायबिलिटी गैप फंडिंग ये भी मैंने बजट की वीडियो में डिस्कस किया हुआ था. दैट व्हाट इज वायबिलिटी गैप फंडिंग? इट्स लाइक अ प्रोजेक्ट ए has a viability to become a larger project and has a viability to become a profitable project, है ना. ये आइडिया ही प्रॉफिटेबल है, बट इस आइडिया को इनिशिएट करने के लिए द फंडिंग इज नॉट देयर. ठीक है, दिस इज प्रॉफिटेबल बट ओनली वंस इट कम्स टू एग्जिस्टेंस. व्हाई इट इज नॉट coming into existence? Because there is no funding, and once funding is not there, this project will not come into existence and there will be no profit. So this gap of funding, this viability gap of funding will be sponsored by the government of India through its new initiatives. Street vending को लेके there are 100 new weekly haats and street food hubs in select cities which will be developed. If we talk about the financial provisions, there is a 25,000 crore finance commission grant which will be given to municipalities. Various funding options are there including PPF, VGF and central assistance which are mentioned.
ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए। नाउ सी बहुत ही बड़ा एक पेज दिया गया था आज अबाउट हेल्थ टैक्सेशन, अबाउट हेल्थ टैक्सेशन and the transformation of various sectors plus prioritizing inclusivity and fiscal prudence। फिजिकल प्रूडेंस पे तो हमने कल भी आर्टिकल डिस्कस किया था, कल ही आर्टिकल आया था अबाउट फिजिकल प्रूडेंस, अबाउट द फिजिकल डेफिसिट का कम करना और बाकी सारी चीज़ें मैनेज करना, इंटरेस्ट पेमेंट्स का कम करना, केपेक्स का बढ़ाना और जो डेट टू जीडीपी रेशियो है उसका कम करना, वो भी हमने देखा अभी, प्लस टैक्सेशन के रिफॉर्म्स को ईज आउट करना। अब यहाँ पे ना इन 4 एडिटोरियल्स में जब मैंने इनको पढ़ा और अच्छे से एनालाइज किया तो ये पता चला दैट दिस इज बेसिकली अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द बजट, टोटल बजट का क्रिटिकल एनालिसिस है। सो आई हैव समराइज्ड देम इन 3 स्लाइड्स। दिस क्रिटिकल एनालिसिस वी विल बी सीइंग लाइक हेल्थ सेक्टर के कंसर्न्स क्या क्या है, बजट को लेके क्या था और अब भी क्या है, बिकॉज देर इज मिनिमल इंक्रीज इन हेल्थ एलोकेशंस। क्या बोल रहे हैं दैट only 1.9% increase for the overall health ministry budget and 1.16% for national health mission and 1.14% of increase in the PMJAY। तो बहुत कम इंक्रीज हुआ है इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन। देयर इज लैक ऑफ इलाबोरेशन ऑन द प्रीवियसली अनाउंस्ड प्लान्स लाइक HPV वैक्सीनेशन, जो गवर्नमेंट ने इससे पहले अनाउंस किया था, ठीक है, अबाउट द सर्वाइकल कैंसर एंड ऑल। नेक्स्ट वाज कि यू विन प्रोग्राम, ठीक है, इस पे भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स, इनका भी कोई रोल यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है इस बजट में। देयर आर इनसफिशिएंट रिसोर्सेज विच आर बीइंग एलोकेटेड फॉर एड्रेसिंग TB एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसका बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है और इसी की वजह से एक्चुअल में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया का बढ़ जाता है। There are missed opportunities to invest in building a multi-layered and multi-skilled healthcare workforce, जो ये करना था हमें because of the COVID-19। जब हमने देखा that there was crisis in healthcare sector only because we do not have two things, one was physical infrastructure and another was human resources who could have catered to that issue, that menace and that pandemic। अब यहाँ पे इशू ये है कि बजट ने इन सब चीज़ों को मिस आउट कर दिया है। तो पहली चीज़, अभी ये चीज़ें हमें कहाँ याद आएंगी और कब याद आएंगी, जब हेल्थ पे लार्जर पोर्शन में, जब हेल्थ पे एक ऐसे आ जाएगा, जब हेल्थ पे एक क्वेश्चन आएगा सोशल जस्टिस में, जब हेल्थ पे एक माइनर टॉपिक आएगा हेल्थ का क्वेश्चन, कहाँ पे, इवन इन इधर इन इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक और इन इकोनॉमी। नेक्स्ट इज अबाउट टैक्स रिफॉर्म्स। तो बजट हैज फोकस्ड ऑन सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर। तो इनने सिंप्लीफाई तो कर दिया, लाइक 1 से 3 लाख रुपए का अलग पर्सनल स्लैब है, वैसे ही 3 से 6, 6 से फिर 7 से 10, नॉट 3 से 7 और 7 से 10 और 10 से 12 और देन व्हाट नॉट टू बी रिमेंबर्ड। इट्स जस्ट द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द पर्सनल स्लैब्स। देयर इज विड्रॉल ऑफ 2% इक्वलाइजेशन लेवी ऑन ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस। ये थोड़ा सा इशू है, यहाँ पे गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कम हो जाएगा। देयर इज अबॉलिशन ऑफ एंजल टैक्स टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स। यस, इससे होगा, स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिलेगा, बट देयर आर अगेन दी अप्रहेंशंस कि हो सकता है ब्लैक मनी को वाइट किया जाएगा यहाँ से। देयर आर चेंजेस इन द कैपिटल गेन्स टैक्स एंड TDS। हमने ऑलरेडी देखा दैट कैपिटल गेन्स टैक्स एंड TDS, कैपिटल गेन्स टैक्स में हमने दो रेट्स देखी, 12.5% एंड 20%, ठीक है, 20% फॉर शॉर्ट टर्म गेन एंड 12% फॉर लॉन्ग टर्म गेन, ठीक है, लॉन्ग टर्म ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। देयर इज इंट्रोडक्शन ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम 2024 फॉर द सेटलमेंट ऑफ पेंडिंग अपील्स। तो अभी तक ये जो स्कीम है विवाद से विश्वास स्कीम, दिस इज बेसिकली फॉर दोज केसेस जो अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग है फॉर द सेटलमेंट, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कोई भी केस चल रहा है किसी इंसान के अगेंस्ट में फॉर हिज टैक्स क्लेम्स कि उन्होंने टैक्स अभी तक पे नहीं किया है, या उन्होंने कम टैक्स पे किया है, या उनने जो टैक्स के डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जो वो इनकम दिखा रहे हैं, वो सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए विवाद से विश्वास स्कीम है। इसमें ई एलोकेशन भी होता है, ठीक है, कि फेसलेस असेसमेंट होता है फॉर टू सेफ गार्ड
the taxpayers from the you can say the red tapeism of the bureaucrats in the income tax department. Economic growth initiatives which are highlighted in the budget. तो there are 9 key priority areas जो हमने अभी तक देखे बजट में, बजट की वीडियो में भी हमने वो देखे. Areas are outlined for leveraging advanced technologies and fostering public private collaboration. यहाँ तक तो ठीक है कि हमने 9 priority areas को आइडेंटिफाई कर लिया. सिग्निफिकेंस है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर पे, ठीक है, प्लस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे. हमने एक नई क्रेडिट गारंटी स्कीम भी लेके आ गए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ग्रोथ मिलेगा इससे. एनुअल टर्नओवर थ्रेशोल्ड फॉर ट्रेड प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 500 करोड़ टू 250 करोड़, दिस वाज लोवर्ड. ठीक है, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म क्या है, और ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के बारे में भी मैंने आपको बताया था दैट दिस इज अ प्लेटफॉर्म, ठीक है, जहां पे रिसीवेबल्स, ट्रेड रिलेटेड रिसीवेबल्स को ट्रेड किया जाता है. रिसीवेबल्स को ट्रेड किया जाता है. व्हाट डू वी मीन बाय रिसीवेबल्स? फॉर एग्जांपल देयर आर टू पर्सन्स, वन इज ए is running a company and B he is also running a company. A purchases some goods from B, और जब ये ट्रांजैक्शन होती है तो होता क्या है बेसिकली, B ने गुड्स भेजे A को एंड A ने एक रिसीट दिया B को कि आपका जो सामान है वो मेरे पास पहुंच गया. अब आपको क्या करना है, आपकी जो पेमेंट है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपीस का पेमेंट आपका मेरे पास है, वो आपको अगले 10 दिन के बाद इस डेट पे मिलेगा. फॉर एग्जांपल 11 नवंबर को आपको ये पेमेंट मिल जाएगा. नाउ व्हाट बी डज इज, बी के पास ये रिसीट आ गया बट बी के पास पैसे तो नहीं आए, पैसे आएंगे बहुत टाइम के बाद. तो बी क्या करता है, बी ये रिसीट उठा के इस प्लेटफॉर्म पे लेके जाता है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म. और वहां पे बी बोलता है कि अगर कोई यहाँ पे बंदा है जिसके पास 1 करोड़ रुपीस है तो वो ये रिसीट ले ले, मुझे 1 करोड़ ना, मुझे 90 लाख ही दे दे, 10 लाख वो ना दे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पैसे खुल जाएंगे, मैं 90 करोड़ का बिजनेस कर लूंगा, 90 लाख का बिजनेस कर लूंगा. तो वो जो बंदा ये रिसीट खरीदता है उसको ये ऑप्शन होता है कि वो अभी 90 लाख पे कर रहा है, बट वो जब ये रिसीट लेगा, जब वो रिसीट पे ऑफ करेगा, जब वो रिसीट लेके ए के पास चला जाएगा तो ए उसको बराबर 1 करोड़ का पेमेंट दे देगा. ठीक है, दैट इज व्हाई दिस ट्रेड्स वाज देयर. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग. एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग को लेके there is allocation of around 1.48 lakh crores towards job creation, employment and skilling. There are 3 comprehensive schemes about employment linked incentives. ये भी हमने देखा already. Women's participation in workforce will be increased. There are initiatives for women hostels, creches in partnership with private sector to increase the female labor force participation. ये भी हमने देखा, एक एडिटोरियल हमने डिस्कस किया था अबाउट इफ यू वांट टू डिक्रीज, इफ यू वांट टू decrease the unemployment rate of India, you need to increase the women participation or female labor force participation in economy, because we have seen only 37% of the women are economically participating. ठीक है, further sustainability and energy. In terms of energy, we have developed these small modular reactors, ठीक है, for nuclear energy. There is a development of these. Plus there is development of national rooftop solar program and there is a scheme. एक तो क्रिटिकल मिनरल्स पे हमने ऑलरेडी बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी साइन किए हैं यूक्रेन के साथ, ये कजाकिस्तान के साथ भी और उज्बेकिस्तान के साथ भी हमने ये साइन किया हुआ है ऑलरेडी ये एग्रीमेंट. आपको जून के मंथ में मिल जाएगा, जून की करंट अफेयर्स में ये था. प्लस एक और चीज़ यहाँ पे सोलर एनर्जी को लेके देयर इज अ स्कीम वेयर गवर्नमेंट विल बी प्रोवाइडिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 300 यूनिट्स, ठीक है, एंड अदर बेनिफिट्स ऑल्सो. व्हेन इट कम्स टू रिएक्टर्स, तो इस बार यूपीएससी ने 2024 में एक रिएक्टर पे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, दिस वाज अबाउट आरटीजी, आई गेस रिएक्टर समथिंग, अ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इज दैट आल्सो, ठीक है, आरटीजी रिएक्टर उसका नाम है, आरटीजीएस रिएक्टर उसका नाम है. तो देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन इन यूपीएससी अबाउट दैट. नाउ द थिंग इज, वो क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे 2024 का जो
पेपर हम डिस्कस कर ही रहे हैं ऑलरेडी, वो क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे कि यूपीएससी ने पूछा क्या था। तो देयर इज फोकस ऑन ऑल ऑफ दीज 3 डायमेंशंस। फर्दर देयर इज डाउनवर्ड रिविजन ऑफ प्रोजेक्टेड फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट हमारा कम होने वाला है, 4.9% पे आने वाला है। 2026 में ये 4.5% का टारगेट लेके चल रहे हैं हम लोग, ये भी चीज़ें याद रखनी है। प्लस देयर इज वेवर ऑफ इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑन लेट पेमेंट ऑफ जीएसटी। स्टेट पार्टनरशिप को लेके द एम्फेसिस ऑन वर्किंग विद स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर फैक्टर मार्केट रिफॉर्म्स लाइक लेबर रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स एंड पावर रिफॉर्म्स आर देयर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेके तो देयर इज लो R&D स्पेंडिंग्स इन इंडिया। R&D पे only 0.7% of the GDP is being spent, but there is need for private sector collaboration in research and development. This editorial is very much important and I want all of you to keep a eye open on this editorial. देखो यहाँ पे हम पहले एडिटोरियल को समझेंगे, उसके बाद ये समझेंगे कि एक्चुअल में कंडीशंस क्या क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे एक केस चल रहा है अभी, एंड जिस केस में पेटिशनर जो है वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं दैट ये जो इम्यूनिटी प्रेसिडेंट और गवर्नर को मिल रही है, क्या ये इम्यूनिटी एब्सोल्यूट है? तो ये इम्यूनिटी कहाँ पे मिलती है? या इम्यूनिटी आर्टिकल 361 के अंदर मिलती है। अगर आपने ये देखा होगा लक्ष्मीकांत में ये लिखा हुआ है अबाउट द एक्सेप्शंस अंडर व्हेन वी टॉक अबाउट ये फंडामेंटल राइट्स जब हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल 14 पढ़ते हैं। आर्टिकल 14 में सबसे पहली एक्सेप्शन ही यही लिखी गई है लक्ष्मीकांत में। तो देयर इज अ 3 जज बेंच which is headed by our Chief Justice of India, which is taking this case and they are discussing about a blanket immunity which is granted under Article 361. ठीक है, कि क्या ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड सिविल प्रोसीडिंग्स दोनों पे है, और अगर ये है भी तो इज इट फेयर टू हैव दिस? ठीक है, नाउ द डिसीजन विच विल कम आउट ऑफ दिस विल बी क्रिटिकल इन टर्म्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड द केस। आर्टिकल 361 को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 361 पढ़ते हैं क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड राज प्रमुख। रिमेंबर दिस टर्म राज प्रमुख। ठीक है, और ये भी याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये टर्म मेंशन्ड है, राज प्रमुख। ये कॉन्स्टिट्यूशन का ही टेक्स्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट है। तो आर्टिकल 361 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, राज प्रमुख शैल नॉट बी आंसरेबल टू कोर्ट। They shall not be answerable to any court for the exercise and performance of their powers and duties in their office for any act done or purporting to be done by him in the exercise and performance of these powers and duties. इसका मतलब क्या है कि इन लोगों को आंसर ही नहीं करना है किसी कोर्ट को। They will not be answerable to court. इसका मतलब क्या है? That court cannot कॉल देम। ठीक है, और कोर्ट उनको बुला के जवाब नहीं लेगा कटघरे में। अंडरस्टैंड दिस थिंग, पहली चीज तो ये समझनी है। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट द कंडक्ट ऑफ द प्रेसिडेंट मे बी ब्रॉट अंडर रिव्यू बाय एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और बॉडी अपॉइंटेड और डेजिग्नेटेड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ चार्ज अंडर आर्टिकल 61। अगर आर्टिकल 61 के अंदर कोई चार्ज लगता है प्रेसिडेंट या गवर्नर पे और उस चार्ज का रिव्यू कर रहा है कोर्ट या बॉडी या ट्रिब्यूनल, तब उस चार्ज के इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रेसिडेंट या गवर्नर को बुलाया जा सकता है। इट इज provided further that nothing in this clause shall be construed as restricting the right of any person to bring appropriate proceedings against the government of India or government of state. It means that इसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान को, आपको, मुझे या किसी भी एक नॉर्मल इंसान के पास यह राइट है कि वो अगर उसको केस फाइल करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अगेंस्ट में तो वो जाके फाइल कर सकता है। नेक्स्ट थिंग, देयर शैल बी नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर, देयर शैल बी नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और गवर्नर, ठीक है, ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। जब तक प्रेसिडेंट या गवर्नर प्रेसिडेंट बना रहता है या गवर्नर बना रहता है तब तक उसके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी, किसी भी कोर्ट में, किसी भी ट्रिब्यूनल में नहीं चलेगी। अंडरस्टैंड दिस, वो प्रोसीडिंग ही एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो पिटीशन ही एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कोर्ट में। नेक्स्ट,
देयर शैल बी नो प्रोसेस, कभी भी इनका अरेस्ट नहीं होगा, ये इम्प्रिजन नहीं होंगे। कौन कौन? प्रेसिडेंट और गवर्नर। शैल इशू फ्रॉम एनी कोर्ट, कोई भी कोर्ट ये ऑर्डर नहीं देगा कि इनको अरेस्ट या इम्प्रिजन करो, इनको जेल में डालो या इनको अरेस्ट करो, ठीक है, प्रोवाइडेड इन एनी सच केस। देयर शैल बी नो सिविल प्रोसीडिंग। अंडरस्टैंड, टू थिंग्स आर देयर, वन वाज दीज टू थिंग्स कि इनको जो है देयर विल बी नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग, सेकंड इज देयर विल बी नो अरेस्ट, नो इम्प्रिजनमेंट एंड नो सिविल प्रोसीडिंग। बट सिविल प्रोसीडिंग में देयर आर सम क्लॉजेस, ठीक है, जो समझने हैं। देयर आर सम प्रोवाइजो like no civil proceeding in which relief is claimed against the president, governor of the state shall be instituted during his term or office, or the act done by him in his personal capacity, whether before or after he entered upon his office as president। देखो मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ रहा हूं यहां पे, क्योंकि यूपीएससी लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन कम पूछता है और कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो अंडरस्टैंड कि कोई भी ऐसी सिविल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी कि अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट ने कोई ऑर्डर दे दिया, फॉर एग्जांपल लैंड सेटलमेंट का ऑर्डर है, ठीक है, लैंड सेटलमेंट के लिए कोई एक एक्ट बना दिया और वो एक्ट पे प्रेसिडेंट का ऑर्डर है ना, प्रेसिडेंट का साइन है तभी जाके तो वो एक्ट बना, या लैंड के ऊपर किसी गवर्नर का साइन है तभी जाके वो एक्ट बना। अब स्टेट में लैंड रिफॉर्म्स आ रहे हैं, स्टेट ने कोई लैंड एक्ट बना दिया क्योंकि लैंड जो है स्टेट सब्जेक्ट में आता है, अब उनने ऐसा कर दिया, तो अब आगे क्या होगा? अब आगे ये समझना है कि गवर्नर या प्रेसिडेंट के ऊपर अब सिविल प्रोसीडिंग नहीं चलेगी इन सच केसेस। इवन दिस ऑर्डर, ये तो उसका पहले ऑफिशियल कैपेसिटी है, ठीक है, जो उसने किया। अब अगर पर्सनल कैपेसिटी में भी उसने ऐसा कुछ किया होगा, पर्सनल कैपेसिटी में भी ऐसा कोई केस पेंडिंग होगा जो सिविल प्रोसीडिंग होगी, है ना, तो वो भी नहीं चलेगी, सिविल प्रोसीडिंग भी नहीं चलेगी वंस ही हैज एंटर्ड द ऑफिस। अंडरस्टूड, यहां तक हुआ। बट यहां पे एक कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन क्या है? कंडीशन है 2 महीने की, कि अगर ऐसा कोई केस चलाना भी है तो क्या करना है। तो प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले एक नोटिस जाएगी, 2 महीने की नोटिस जाएगी, 2 महीने पहले की नोटिस जाएगी प्रेसिडेंट और गवर्नर को। वंस दिस नोटिस इज डिलीवर्ड इन राइटिंग to the president and governor, then a case may be or left as his office stating the nature of the proceeding, the cause of the action thereof, the name, description, place of the residence of the party by whom such proceedings are to be instituted and relief which he claims। सबसे पहले क्या होगा? सिविल प्रोसीडिंग नहीं होगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं होगी, अरेस्ट नहीं होगा, इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा, 4 चीजें हमने समझ ली। बट कंडीशन ये है, सिविल प्रोसीडिंग कब चलेगी? सिविल प्रोसीडिंग तब चल सकती है जब गवर्नर के या प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में कोई केस आया, तो पहले प्रोसीडिंग नहीं होगी, पहले पिटीशन नहीं लगेगा, पहले क्या लगेगा? एक नोटिस जाएगी, वो नोटिस 2 महीने का टाइम पीरियड देगी प्रेसिडेंट और गवर्नर को। उसके बाद ये केस रजिस्टर होगा और उस केस में जो बंदा है, जो केस क्लेम कर रहा है, जो बोल रहा है कि मुझे इसके अगेंस्ट में क्लेम सेटलमेंट करना है, प्रेसिडेंट या गवर्नर के अगेंस्ट में क्लेम सेटलमेंट करना है, तो उस बंदे का नाम, इस केस का डिस्क्रिप्शन, उस बंदे का प्लेस ऑफ रेजिडेंस और जो वो क्लेम कर रहा है, वो सारी चीजें इस केस में फाइल होंगी। अभी मैं इतना क्यों बोल रहा हूं? ये सब तो हमें पता ही है ऑलरेडी, केस में तो ये सब चीजें होती ही है, नेचुरल है। बट यूपीएससी जब ये टर्म्स पूछेगा ना कि नेम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस, रेजिडेंस, क्योंकि इस बार यूपीएससी ने पूछा आर्टिकल 368 के अंदर क्या चीजें हैं, ऑल्टरेशन, वेरिएशन और रिपील, 3 चीजें पूछ ली। सब बच्चों ने बोला यार वेरिएशन नहीं होगा, वेरिएशन नहीं होगा, अमेंडमेंट तो हो गया, रिपील भी हो गया, अब वेरिएशन का क्या मतलब है? तो फिर पता चला कि यार वहां पे तो तीनों चीजें लिखी हुई है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जब नेम, डिस्क्रिप्शन, प्लेस ऑफ रेजिडेंस लिखा जाएगा ना, तब आप बोलोगे कि यार डिस्क्रिप्शन क्यों होगा, नेम, प्लेस ऑफ रेजिडेंस तो है, तो वहां पे रीजन करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहां पे क्लियर आपको करना पड़ेगा अपने आप को कि 4 प्रोविजन से 361 के, और 361 को ही समझना है बस। दैट इज अबाउट 361। अभी ये एडिटोरियल किस चीज के बारे में है? एडिटोरियल टॉक्स अबाउट दैट द इम्यूनिटी ग्रांटेड टू द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर अंडर आर्टिकल 361 इज नॉट एब्सोल्यूट, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द क्रिमिनल चार्जेस। तो अभी तो हमने देखा था कि क्रिमिनल चार्जेस में ना अरेस्ट होगा, ना इम्प्रिजनमेंट होगा, ना ही
कोर्ट में कोई प्रोसीडिंग चलेगी, नो प्रोसीडिंग शैल बी देयर। वहां पे तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे तो कोई कंडीशन ही नहीं थी, वहां पे तो कोई प्रोवाइजो ही नहीं था, वहां पे कोई क्लॉज ही नहीं था क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे, क्रिमिनल चार्जेस पे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इज एग्जामिनिंग दिस थिंग, दैट इज देयर अ ब्लैंकेट इम्यूनिटी विच इज गारंटीड अंडर आर्टिकल 361 which undermines the fairness, constitutional morality and it violates the fundamental rights. Under Article 361, 361 क्या बोल रहा है, जो हमने अभी अभी पढ़ा, that no criminal proceeding whatsoever shall be instituted or continued against the president or the governor of the state in any court during his term of office. ठीक है, अगर ये ब्लैंकेट वे में बोल रहा है कि देयर विल बी नो प्रोसीडिंग व्हाटसोएवर, कोई कंडीशन नहीं है, however सुप्रीम कोर्ट इज स्टिल इंटरप्रेटिंग दिस क्लॉज to determine when exactly can be criminal proceedings initiated. The petitioner, जो इस केस में petitioner है, he has argued that a bar on the criminal proceedings under Article 361 Clause 2 does not extend to the illegal acts or those which strike at the roots of the citizens of the fundamental rights. कि वो illegal acts जिन पे प्रेसिडेंट या गवर्नर अपने सिग्नेचर करते हैं या उसको अप्रूव कर देते हैं, ठीक है, वो अगर फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस को हिट कर रहे हैं, देन इट कैन नॉट बी सेड दैट दोज इलीगल एक्ट्स ऑल्सो, उसमें भी उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग मिल जाएगी, ये क्रिमिनल इम्यूनिटी मिल जाएगी क्रिमिनल प्रोसीडिंग से, तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, इससे पहले भी एक केस आया था जिसका नाम था रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इट वाज अबाउट द सिविल इम्यूनिटी। सो अंडर दिस केस द आर्टिकल 361 क्लॉज 4, जो हमने अभी क्लॉज 4 पढ़ा ना, जिसमें बोला गया था सिविल इम्यूनिटी के बारे में, दैट देयर शैल बी नो सिविल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द गवर्नर एंड द प्रेसिडेंट प्रोवाइडेड दैट ही शैल बी सर्व्ड विद द नोटिस ऑफ 2 months। नोटिस मिलेगा 2 months का, ये सब हमने पढ़ा अभी। और 2 महीने की नोटिस के बाद वो जो पिटिशन लगेगा, उस पिटिशन में सारी डिटेल्स रिकॉर्ड की जाएंगी। ये जो एडिटोरियल है, ये जो केस था रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें सिविल इम्यूनिटी को ही इंटरप्रेट किया था सुप्रीम कोर्ट ने, एंड इट सेड कि ये जो केस है, इट डज नॉट टेक अवे द पावर्स ऑफ द सिटीजन टू चैलेंज द एक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलाफाइड। ठीक है, तो इस केस में तो ये क्लियर कट हो गया था कि सिविल इम्यूनिटी में आपके पास ये पावर है कि आप जाके कोर्ट में केस दाखिल कर सकते हो इसके अगेंस्ट में, अगर कोई एक्शन प्रेसिडेंट या गवर्नर लेता है विच इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर। फर्दर एक रूलिंग है मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की, राम नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस, जिसमें यह बोला गया था दैट इम्यूनिटी जो गवर्नर और प्रेसिडेंट की है, इट वुड नॉट इंपेयर द पुलिस पावर टू इन्वेस्टिगेट एन ऑफेंस, ठीक है, विच इंक्लूडेड द रिकॉर्डिंग ऑफ गवर्नर स्टेटमेंट। ठीक है, कि अगर कोई केस लगा हुआ है और पुलिस इन्वेस्टिगेट करना चाहती है तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकती है ना। द करंट केस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट एम्स टू अंडरस्टैंड द इम्यूनिटी वेदर इट्स अनफेटर्ड और अनब्रिडेड। अंडरस्टूड यहां तक? अभी आज का क्वेश्चन इसी पे होगा। ठीक है, व्हाट आर द इम्यूनिटीज प्रोवाइडेड टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, क्योंकि आज से हमने GS2 स्टार्ट कर दिया, तो अब आप देखो GS2 से क्वेश्चंस आएंगे आपके आज से कंटिन्यूअसली। और ये वाला क्वेश्चन is about the FTA with UK। अभी भी हमारी बातें चल ही रही है, FTA अभी कंक्लूड नहीं हुआ है, बट मोदी जी बोल रहे हैं यहाँ पे, जो ये नए UK के फॉरेन सेक्रेटरी आए हैं जिनका नाम है डेविड लैमी, ये दिल्ली आए हैं वेंसडे को। ठीक है, और वेंसडे मतलब कल ही इनके साथ मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की। तो UK कंटेन्स नॉर्दर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड एंड वेल्स। ठीक है, ये टेरिटरीज है यूके की। यूके ने अपना ये फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया भेजा है, जो कि नया फॉरेन सेक्रेटरी है। नाउ द एडिटोरियल हियर टॉक्स अबाउट दिस न्यूज आर्टिकल टॉक्स अबाउट द FTA which is under current like it's still under the talks only। ठीक है, अभी भी इस पे डिस्कशन चल ही रहा है। लेट्स अंडरस्टैंड अ बिट अबाउट इंडिया यूके रिलेशंस। ठीक है, और अभी हमें ये समझना है कि यार सबसे पहले तो कंट्रोवर्सी चल रही थी वेस्ट वर्सेस रशिया। ठीक है, जिसमें बीच में इंडिया भी आ गया था, क्योंकि बोला गया था इंडिया को वेस्टर्न सैंक्शंस जो रशिया पे लगे हुए हैं, आप भी रशिया पे सैंक्शंस लगाओ। बट इंडिया ने बोला नहीं जी, मैं तो सैंक्शंस नहीं लगाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं रशिया के साथ ट्रेड करूंगा क्योंकि मेरा बेनिफिट है वहां पे। तो क्यों ऐसा करोगे? क्योंकि
ऑलरेडी जो वेस्ट रशिया से एक दिन में खरीदता है उतना इंडिया एक महीने में खरीदता है। तो हम, जब आप नहीं रोक रहे तो हम क्यों रोके, और हमारा इंटरेस्ट है तो हम तो अपना इंटरेस्ट फुलफिल करेंगे। डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, है ना, डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस यूक्रेन क्राइसिस, इंडिया एंड यूके के जो रिलेशंस है दे हैव इम्प्रूव्ड। तो दिस विल बी योर introduction, that despite all of the chaos which was over the Ukraine crisis, इंडिया एंड यूके के जो रिलेशंस है वो इंक्रीज हो गए। कैसे इंक्रीज हो गए, ये आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करने के लिए आप क्या लिखोगे, दैट देयर वाज दिस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, जो हमने अपलिफ्ट किया अपनी रिलेशंस को टुवर्ड्स स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इन 2021 between India and UK. Plus, we also have signed an agreement on 2030 roadmap for India UK relations। ठीक है, आई नो मैं बहुत ज़्यादा शॉर्टकट्स यूज़ करता हूँ, शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करता हूँ। आप आंसर में मत लिखना, अपने नोट्स में ये शॉर्टकट्स या ये शॉर्ट फॉर्म्स लिख सकते हो, नोट्स में लिख सकते हो, आंसर में मत लिखा करो, क्योंकि जब मेरे पास आंसर आता है तब उसमें होता है। Both the countries held talks on defense relations and defense related trade and deepening the cyber security and defense cooperation recently। और India and UK also plan to hold their first strategic tech dialogue। ठीक है, दिस टेक डायलॉग जो होगा ये एक मिनिस्टीरियल लेवल समिट होगी। मतलब क्या है इसका मिनिस्ट्रियल लेवल समिट, कि जो हमारे यहाँ मेटी के या जो टेक की मिनिस्ट्री के मिनिस्टर होंगे और ब्रिटेन में जो उसके कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफिसर होगा, इन दोनों की मीटिंग होगी हर साल, और ये समिट ऑर्गेनाइज किया जाएगा इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश अ न्यू जॉइंट साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम। ठीक है, additionally, if you talk about India and UK relations, both have agreed to strengthen their cooperation in maritime domain। और इसको लेके there is India UK, और basically it's India Pacific Ocean Initiative, India Pacific Ocean Oceans Initiative, in which the aim is that UK will become a major partner on maritime security issues in Southeast Asia। इसके अंदर क्या होगा, that UK will become major partner in security, maritime security in South Asia। ठीक है, यहां तक क्लियर है। दोनों का फायदा है इसमें, बिकॉज ऑलरेडी हमारे इंडिया और यूके क्या ऑलरेडी एक क्या चल रहा है हमारा डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जो 2015 की है, ये तो ऑलरेडी चल रहा है। दे फॉर ब्रिटेन अ सक्सेसफुल कंक्लूजन ऑफ दिस FTA with India would provide a boost for global British ambitions as the UK has sought to expand its markets beyond। तो इसीलिए FTA का बात हो रहा है यहाँ पे आफ्टर द ब्रेग्जिट। ठीक है, नाउ ब्रिटेन हैज बीन ट्राइंग टू सीज द अपॉर्चुनिटी, बट अभी भी यहाँ पे जो चीजें हैं वो सीमेंट नहीं हो रही है। दैट इज द लास्ट थिंग अबाउट दिस। नाउ कल हमारा GS1 का पेपर कंप्लीट हो गया, 2023 का मेंस का पेपर खत्म हो गया। आज से हम 2023 का GS2 का पेपर डिस्कस करेंगे। सी दिस क्वेश्चन टॉक्स अबाउट, देखो अब मेरे इंटरेस्ट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं और अब मेरा इंटरेस्ट वाला चीजें आ रहा है, अब आप देखना थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंटरडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, व्हाट इज डेमोक्रेसी, यू नीड टू कमेंट ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, कमेंट मतलब डू यू अग्री और व्हाट आर योर व्यूज
वट एवर यू कैन डू वेन एवर इट सेज कमिट ना, इट मीन्स कि आपका क्या विचार है इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है, आप क्या कहना चाहते हो इस क्वेश्चन के बारे में, बस इस स्टेटमेंट के बारे में। ये क्वेश्चन भी नहीं है, ये आपका स्टेटमेंट है। जो भी आप इसकी इस स्टेटमेंट के बारे में टिप्पणी करना चाहते हैं, इट इज टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी मतलब कि आप कुछ बोलिए इसके बारे में, ठीक है। नाउ आपको बोलना है, ईदर यू कैन अग्री टू द स्टेटमेंट, ईदर यू कैन डिसअग्री टू द स्टेटमेंट, ईदर यू कैन गिव अ टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेटमेंट, और you can just align your thoughts according to the statement, ठीक है। अभी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। क्या गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशनली? जुडिशियल इंडिपेंडेंस। अब कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, इसका मतलब क्या है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसका मतलब क्या है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो इसको कैसे टैकल किया जाए, है ना, इस चीज को कैसे आप बोल सकते हो कि इसको इग्नोर कर देंगे, है ना। बट एक तो हमारा ये चीज हो गया, दूसरी चीज है इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। अब क्या क्या चीज ऐसी है विच इज प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है, ठीक है। इज इट लिबर्टी, है ना, इज इट फ्रीडम, इज इट फ्रेटर्निटी which is actually important for liberty, important for democracy? Is it liberty of life, ठीक है, और इज इट समथिंग एल्स? दैट इज जो आपको देखना है कि व्हाट आर द प्री रेक्विजिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाट आर द प्री रेक्विजिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। नाउ इंटरलिंक द टू, ठीक है, इन दोनों को इंटरलिंक करो। इंटरलिंक करने का मतलब क्या है कि क्या सच में जुडिशियल इंडिपेंडेंस एक प्री रिक्विजिट है डेमोक्रेसी का? दैट विल बी द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, दैट विल बी द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब समझ में आया क्वेश्चन को कैसे खोलना है? पहली चीज है कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो कैसे कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है जुडिशियल इंडिपेंडेंस? तो हम क्या लिखेंगे? कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स लिखेंगे, ठीक है, जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को दर्शाता है, लाइक सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इट विल बी द यू कैन से द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द फाइनल गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। It maintains the balance. How it maintains the balance? How it maintains the checks and balances on the constitution and the functioning of legislature and executive, ठीक है। That is one thing, that is judicial independence. Why is it important? Next is it prerequisite of democracy? तो ये दो चीजों को हमें हाईलाइट करना है। तो डेमोक्रेसी की जो प्री रिक्विजिट्स है, इस पे हम एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं। डेमोक्रेसी एक कोने में लिखेंगे, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, है ना, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, फंडामेंटल राइट्स, रिपब्लिक हेड, वोट, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव, है ना, पब्लिक वॉइस, है ना, डिसेंट, ये सब चीजें डेमोक्रेसी के प्री रिक्विजिट्स है। प्लस अब जुडिशियल इंडिपेंडेंस का प्री रिक्विजिट। तो एक और दो, इन दो चीजों पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन में, और ये जो ये प्री रिक्विजिट्स है इसके लिए एक फ्लो चार्ट बनाएंगे क्वेश्चन में, एक छोटा सा फ्लो चार्ट बस। देन यू विल सी योर मार्क्स इंप्रूविंग अलॉट, ठीक है। तो हेयर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डिस्कशन हमने कर लिया, ब्रेनस्टॉर्म कर लिया। ये ब्रेनस्टॉर्म आपको हर क्वेश्चन में करना है, और कल से हम ये आज से ही हर क्वेश्चन में करने वाले हैं। फर्दर इस जो ये दो स्लाइड्स हैं, जब आप पीपीटी डाउनलोड करोगे तो आप देख लेना इस पे क्या डिस्कशन किया गया है। सेपरेशन ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, पब्लिक ट्रस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेजॉरिटेरियनिज्म, दीज ऑल आर देयर टू बी मेंटेन्ड बाय जुडिशियरी। और अगर जुडिशियरी ये सब चीजें मेंटेन कर रही है तो इसके लिए जुडिशियरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। और ये सब चीजें इन टर्न आर इंपॉर्टेंट फॉर दीज आर एक्चुअली द प्री रिक्विजिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। लास्ट में कंक्लूड करना है, 150 वर्ड्स का आपका क्वेश्चन है। विद दिस, थैंक यू, जय हिंद, ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ योर फ्यूचर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर डे अहेड। थैंक यू।